Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on information society and knowledge society. So we have been seen that what are the difference between information society and knowledge society. We have also saw that what are the similarities between information society and knowledge society. So already I have told that information and knowledge are not different from to each others, and data is not also different from the information, and information is not different from the knowledge. They are integral part of each others, but their only stages are some difference, and so that is why they are looking different types, but they are similar of one part, right? So when we heard the two name of one person, two name of one substances, at the same way we can tell about the data, information, knowledge and wisdom. There are four names of one stage, right? सो एक ही अवस्था के चार नाम है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं. तो इसलिए देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, राइट? सो वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन सोसाइटी and knowledge society, so from this we can bring out conclusion that there is no also too much similarity, too much differentiate between the information society as well as knowledge society, right? Now we are going to discuss on the knowledge society. After discussing on the information society, now we are looking the knowledge society. So knowledge society is a society whose economy depend upon the knowledge of their citizens, and success of this society is dependent on the innovation, creativity of the citizens, right? So while we are talking about, or when we are talking about the information society, at that time it is a kind of society which economy depend on the information. At the same way we can define here of knowledge society, it is a kind of society in which the economy of society, economy of country depend on the knowledge. So you can create the question that how the economies depend on the knowledge. There is no relation between the knowledge and economy, you can say like this. तो नॉलेज और इकोनॉमी में बड़ा अंतर होता है, इसका क्या सहसंबंध हो सकता है, ऐसा सवाल आपके मन में आ सकता है, लेकिन इसका संबंध होता है. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द नॉलेज एंड इकोनॉमी, राइट? इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ वन पर्सन and if we take off example of another person, we are called A and B of both person. हम दो व्यक्ति का नाम, दो व्यक्ति का एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, एक का नाम A और एक का नाम B. ओके, तो A के पास नॉलेज है, B के पास नॉलेज नहीं है. तो A अपने नॉलेज के बेस पे डिफरेंट टाइप्स स्किल एक्वायर करता है, और स्किल एक्वायर करने के बाद आफ्टर एक्वायरिंग द स्किल ही अर्न लॉट ऑफ मनी, राइट? एंड आफ्टर earning the lot of money he purchase the many things, he will become the success in his life, he will become the rich in his life. And if we are compare the B person, he don't have any kinds of knowledge, so he don't acquire any kinds of skill. So unskilled
man, you can categorize him. So that's why he don't earn a lot of money in their life. He just earn for the butter and bread. तो अपनी उपजीविका चलाने के लिए सिर्फ वो कमाता है, उससे ज़्यादा वो कमाता नहीं, और उसकी जो प्राइमरी नीड्स है वो फुलफिल होती है ओनली जो कमाता है उससे कमाता है। लेकिन जो सेकेंडरी नीड्स होती है, एजुकेशन, हेल्थ और जो कंफर्टेबल लाइफ जिसे हम बोलते हैं, उस तरह का लाइफ वो नहीं जीता, क्योंकि वो केवल ब्रेड एंड बटर के लिए कमाता है, अपना उपजीविका चलाने के लिए कमाता है। तो दोनों में ये फर्क हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर नॉलेज और मनी का रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि ए को नॉलेज है इसलिए वो पैसा ज़्यादा कमाता है, ए बी को नॉलेज नहीं है इसलिए वो पैसा ज़्यादा कमाता नहीं, उसकी अर्निंग कम है ए से और ए की अर्निंग बी से ज़्यादा है। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन ऑफ नॉलेज एंड इनकम of person, income of economy. At the same way, we can say those people who are living in the society, those people who are living in the country, their knowledge, the relation of the economy of country. We can connect the relation between two these elements. तो इस तरह से हम समाज में जो व्यक्ति रहते हैं, हमारे देश में जो व्यक्ति रहते हैं, उनका नॉलेज किस तरह का है और किस तरह का स्किल वे एक्वायर करते हैं और उसके बेस पे किस तरह की अर्निंग वे करते हैं। और जैसे ही ज़्यादा नॉलेज होगा तो उसके बेस पे ज़्यादा अर्निंग करते हैं, और अर्निंग के बेस पे उनका जो आय, इंडिविजुअल इनकम बोलते हैं हम, आय इनकम बोलते हैं, वो बढ़ता है। और हर एक व्यक्ति का जब आय इनकम बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जीएनपी बढ़ता है, ग्रॉस नेशनल इनकम, जो देश का इनकम बोलते हैं वो बढ़ता है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बनाने के लिए दो घटक इम्पोर्टेंट होते हैं। वे कौन से? हाई इनकम, इंडिविजुअल इनकम ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, दोज हु आर लिविंग इन द कंट्री, एंड द जीएनपी, ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। ये स्ट्रॉन्ग जिस देश के होते हैं, जिस देश में दो इनकम स्ट्रॉन्ग होते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग बनती है। ओके, वो डेवलप्ड कंट्री में कैटेगराइज होती है। तो इस तरह से जिस देश में नॉलेजेबल पीपल नहीं है, वे ज़्यादा एक्वायर स्किल नहीं करते, फिर अर्निंग कम होती है, इंडिविजुअल कम होता है, फिर उस देश का जीएनपी भी घटता है, जीएनपी नहीं बढ़ता है, फिर उस देश की इकोनॉमी, आय इनकम और जीएनपी के न बढ़ने के कारण और वीक होने के कारण उस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होती, फिर कुछ देशों की मीडियम स्ट्रांग होती, कुछ देशों की एकदम लो स्ट्रांग ही नहीं होती। तो फिर उनका कैटेगराइजेशन डेवलपिंग कंट्री, जिसे हम विकसनशील कंट्री कहते हैं, जो प्रोसेस में होते हैं डेवलपिंग की, डेवलपमेंट की, और जो अनडेवलपमेंट कंट्री उसमें हम करते हैं। तो इस तरह से हम नॉलेज और इकोनॉमी का डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन कनेक्ट द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द नॉलेज ऑफ पर्सन एंड द इकोनॉमी ऑफ कंट्री, राइट। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट से हमें ये ध्यान में आया होगा कि द नॉलेज सोसाइटी इज सोसाइटी हुज इकोनॉमी डिपेंड अपॉन द नॉलेज ऑफ देयर सिटीजन्स, राइट। सो to give the clarification, to give the analysis of this statement, we have taken a lot of example here, and that's why you should understand of this, the meaning of this statement. तो इस तरह से आपको इस स्टेटमेंट का अर्थ समझ में आया होगा। इसके अर्थ, इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमने कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखे, किस तरह से व्यक्ति का नॉलेज और इकोनॉमी का संबंध होता है, किस तरह, जिस तरह व्यक्ति का नॉलेज होता है उस तरह संस्था का भी नॉलेज होता है। कोई भी संस्था नॉलेज के बल पर खड़ी होती है और इस्टेब्लिश की जाती है, जैसे कि R&D हम बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिस संस्था में होते हैं, और रिसर्च सेंटर जिसे बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे नॉलेज इंफॉर्मेशन डेवलप किया जाता है। तो हर एक संस्था का एक पर्टिकुलर अपना
नॉलेज होता है, उस नॉलेज के बेस पर वह संस्था खड़ी होती है और फिर उस नॉलेज के बेस पे ही उसका डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिकली और जैसे कि फिजिकली, राइट। तो उसका भी योगदान हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने में होता है, राइट। और ठीक उसी तरह से जैसे हमने एग्जांपल लिया एक व्यक्ति का, संस्था का, उसी तरह हम समाज का भी उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, जैसे कि हम फ्लो चार्ट के माध्यम से यह अधिक क्लियर, स्पष्ट, जिसे हम बोलते करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो आपके अधिक समझ में ये आएगा। नॉलेज, ओके, और यहाँ पर इकोनॉमी का क्या क्या रिलेशन होता है। दोनों का क्या रिलेशन होता है, ओके। ये इंटरडिपेंडेंट होता है क्या, ओके। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होना, उसे हम इंटरडिपेंडेंट कहते हैं, ओके। तो है इंटरडिपेंडेंट होते हैं, दोनों में जो रिलेशन होता है इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है। तो जिस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि पर्सन, इंस्टीट्यूट और सोसाइटी और यहाँ पर कंट्री, हम यहाँ पर 4 घटक ले सकते हैं। ओके, ये 4 जो घटक हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये नॉलेज के बारे में कैसे है इस पर ये डिपेंड होता है। तो पहला हम यहाँ पर देख सकते हैं, नॉलेज के बारे में स्ट्रॉन्ग है, नॉलेज के बारे में स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ओके, पहला। दूसरा वीक, वीक है, वीक है, वीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है पहले वाली कैटेगरी में और इकोनॉमी वीक होती है। ओके, तो इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से नॉलेज और इकोनॉमी का रिलेशन यहाँ पर होता है और कैसे हम नॉलेज को बढ़ाकर इंडिविजुअल लेवल पर, इंस्टीट्यूशन लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर और कंट्री लेवल पर हम अर्निंग कर सकते हैं, स्किल एक्वायर कर सकते हैं और स्किल के बेस पर अर्निंग कर सकते हैं और हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये कितना अहम सवाल यहाँ पर जो आपको किया गया है कि नॉलेज का संबंध इकोनॉमी से होता है क्या, तो क्लियर रूप से हमें यह जवाब देना होगा कि यस, नॉलेज का सीधा संबंध इकोनॉमी से होता है, ओके। तो पर्सन, इंस्टीट्यूशन लेवल, सोसाइटी लेवल, कंट्री लेवल, चारों लेवल पर हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं। चारों लेवल का नॉलेज अलग अलग होता है, जैसे पर्सन का नॉलेज इंडिविजुअल लेवल का होता है, संस्था का नॉलेज इंस्टीट्यूट लेवल का होता है और सोसाइटी का नॉलेज ग्रुप लेवल का होता है, कंट्री लेवल का एक
बड़ा नॉलेज हम कह सकते हैं। तो जब नॉलेज का कनेक्शन सोसाइटी से होता है तो नॉलेज सोसाइटी बनती है, जिसमें हर तरह का ग्रुप रहता है, जो लोग रहते हैं, और उसे ही हम कंट्री बोलते हैं। नॉलेज सोसाइटी होने की वजह से जो लोग होते हैं उनका आय इनकम बढ़ता है, स्ट्रांग होता है, और जैसे ही लोगों का आय इनकम बढ़ता है, स्ट्रांग होता है, तो उनका जीएनपी भी बढ़ता है। ओके, तो स्ट्रांग इकोनॉमी में क्या होता है, आय इनकम और जीएनपी जिसे बोलते हैं स्ट्रांग होता है, और इस इधर स्ट्रांग वीक होता है। ओके, तो ए भी कनेक्शन यहाँ पर आता है, आई इनकम। ओके, तो इस तरह से नॉलेज और इकोनॉमी का रिलेशन यहाँ पर होता है। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे जब व्यक्ति का उत्पन्न बढ़ता है तो आई इनकम वहाँ पर बढ़ता है, स्ट्रांग होता है। और ये कब बढ़ता है, बिना नॉलेज के हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ क्लास। देर आर generally 60 students who are admitted in the one class, and we categorize them according to their talent. Okay, 40% are the most cleverest student, most clever student, and 40% medium level clever, and 20% are low level according to their intelligence, right? So those who are come in 40% in top level intelligence, they acquire different types of skill on the base of their knowledge, and when they pass out, at that time they will get the good job compared with medium level student and low level student according to the intelligence, right? And those who are categorized under the medium level of intelligence, medium level of knowledge, they will get not superior and not inferior, middle level job they will get, okay, on the base of their knowledge. And those people who are categorized under the low intelligence, low knowledge student, they will get low level job, okay, on the base of their intelligence. तो इस तरह से 3 लेवल के स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखे, टॉप लेवल, मीडियम लेवल एंड लो लेवल अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस। तो उनको उनके नॉलेज के हिसाब से जॉब मिलता है, राइट? मीडियम लेवल के बच्चे हमेशा सोचते हैं कि जो हमारे आगे थे उनका स्टडी अच्छा था तो उनको अच्छा खासा जॉब मिल गया और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं अभी, वो हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन जो उन्होंने किया, जो उन्होंने नॉलेज प्राप्त करने का प्रयास किया, स्किल डेवलप करने का प्रयास किया, ये सब मीडियम लेवल के लोगों ने नहीं किया, स्टूडेंट ने नहीं किया, लो लेवल स्टूडेंट ने नहीं किया। तो ये डिफरेंस जैसे हम क्लास में देखते हैं, तो क्लास इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। उसी तरह से सोसाइटी में भी अलग अलग लेवल के क्लास के पीपल होते हैं। हर एक क्राइटेरिया पे हम ये क्लास कर सकते हैं, जैसे कि नॉलेज के लेवल पर और इकोनॉमिक के लेवल पर अलग अलग क्लास होते हैं सोसाइटी में, राइट? तो एक क्लास सोसाइटी में तैयार होने के लिए कौन जिम्मेदार रहता है? हमारे लोग ही जिम्मेदार होते हैं, ओके?
यदि हम अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, लगन से पढ़ाई करते हैं, अच्छा खासा जॉब हमको मिल सकता है पढ़ाई पूरी होने के बाद। फिर उसके बाद हम अच्छी लर्निंग के बाद अर्निंग कर सकते हैं और फिर हमारा आय इनकम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं। और फिर उसके बाद हमारा आय इनकम बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग होता है। फिर जो हमारी प्राइमरी नीड तो पूरी होती ही है इजीली, सेकेंडरी नीड भी पूरी होती है, तो हमारा लाइफ कंफर्टेबल होता है, हाई प्रोफाइल लाइफ हम जीने लगते हैं। बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ द नीड्स यू विल फुलफिल ऑन द बेस ऑफ योर नॉलेज एंड अर्निंग एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो इस तरीके से नॉलेज और इकोनॉमी का गहरा संबंध यहाँ पर होता है। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने यहाँ पर देखा, इसके बारे में जाना और एग्जाम्पल के साथ यह देखा कि इसकी तरह से नॉलेज और इकोनॉमी का संबंध होता है। तो दोनों एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए। जिस सोसाइटी में नॉलेज स्ट्रॉन्ग होता है उसका एक एग्जाम्पल लिया फर्स्ट, और जिस सोसाइटी में नॉलेजेबल पीपल वीक होते हैं, कम होते हैं, उसका भी एग्जाम्पल हमने लिया। और उसका सीधा असर इकोनॉमी पे कैसे पड़ता है। जिस देश की सोसाइटी नॉलेज सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होती है उस देश का इकोनॉमी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, और जिस देश में नॉलेज सोसाइटी वीक होता है उस देश की इकोनॉमी सिस्टम वीक होता है। तो उसके बेस पे इकोनॉमिक सिस्टम के बेस पर हम 3 लेवल पर हर एक कंट्री का डिवाइडेशन करते हैं। We can divide each and every country on the base of economy system of each and every country। कौन से 3 कैटेगरीज है वो, फिर अनडेवलप्ड कैटेगरीज, अविकसित राष्ट्र जिसे हम बोलते हैं। दूसरा है जो पूरी तरह से अविकसित है, जो अपनी प्राइमरी नीड के लिए जूझ रहे हैं, अर्निंग के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए। उनका फिजिकल, मेंटली वगैरह इंडिविजुअल लेवल पर विकास नहीं, इंस्टीट्यूशन लेवल पर विकास नहीं, सोसाइटी लेवल पर विकास नहीं होता, कंट्री लेवल पे वे पीछे रहते हैं, तो इसलिए उस कंट्री को अनडेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। लेकिन जो एफर्ट करते हैं कुछ बनने का, कुछ करने का प्रयास करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे और कंट्री लेवल पे, तो वे लोग डेवलपिंग में आते हैं। They are process in the progress or development. That is why they are categorized as a developing country. Okay. तो उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति होती है वे अविकसित राष्ट्र से अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, लेकिन जो विकसित राष्ट्र होते हैं वे इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे और कंट्री लेवल पे उनकी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उनकी जो देश की इकोनॉमी होती है वह भी स्ट्रॉन्ग होती है। और ऐसे देशों में उनका आय इनकम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी नीड इजीली पूरी करते हैं और अपना कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, राइट। तो इसलिए उनका देश स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होने की वजह से जिस देश में आई इनकम और जीएनपी ग्रॉस नेशनल इनकम स्ट्रॉन्ग होता है उस देश की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होती है, और जिस देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है उस देश का कैटेगराइजेशन हम डेवलप कंट्री में करते हैं, विकसित राष्ट्र। ओके, तो इस तरह से नॉलेज का संबंध सीधे इकोनॉमी से आता है और इकोनॉमी का संबंध हमारे देश की डेवलपमेंट के साथ आता है, हमारे देश का विकास के साथ वह संबंध आता है। तो इस तरह से हम दुनिया में हमारा देश किस कैटेगरी के अंडर है ये हमें समझना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज है, देयर आर सो मेनी कंट्रीज आर लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ अर्थ, but they are categorized in 3 categories. Okay, if we take example of our India is categorized as a developing country, but if we take example of developed country,
France, Japan, then China, then America, then European countries. Okay. So all these are country categorized as a developed country. Okay. And undeveloped country, those are facing the problem of bread and butter. They don't survive without the food and all these primary needs in their country. They are fighting for getting the primary needs in their country. Such a kinds of the countries are categorized under the undeveloped country. Okay. तो इस तरह के कंट्रीज में कौन से कंट्रीज आते हैं? ओके, तो अफ्रीकन कंट्रीज अनडेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं, जहाँ पर खाने के लिए वे लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलेशन ऑफ नॉलेज एंड इकोनॉमी कैसे होता है। ओके, सो यू कैन ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट. With the help of this flow chart, you will understand how the socio-economic condition was important or is important in every nation. किस तरह से सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हमारे देश की स्ट्रांग होनी चाहिए और उसका इम्पोर्टेंट क्या होता है। और जैसे ही हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात करते हैं और नॉलेज सोसाइटी की बात करते हैं तो उसका इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। नॉलेज सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी ज़्यादातर उसमें फ़र्क नहीं है। जब हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात करते हैं तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द नॉलेज सोसाइटी, और while we are talking about the knowledge society, ultimately we are talking about the information society. जब हम नॉलेज सोसाइटी के बारे में बोलते हैं तो अल्टीमेटली हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में बोलते हैं, और जब हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में बोलते हैं तो अल्टीमेटली हम नॉलेज सोसाइटी के बारे में बोलते हैं। तो दोनों को एक एग्जाम्पल यहाँ पर सूट होता है। ओके, तो जब नॉलेज सोसाइटी की हम बात करते हैं तो किस तरह से इकोनॉमी का उसका संबंध आता है। तो डेफिनेशन में हमने देखा कि नॉलेज सोसाइटी इज डिपेंड ऑन द इकोनॉमी। ओके, और इकोनॉमी इज डिपेंड ऑन द नॉलेज सोसाइटी, सो दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक दूसरे पे वे अवलंबन होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल से हमें नॉलेज सोसाइटी का काम कैसे चलता है, नॉलेज सोसाइटी का मीनिंग क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसका इकोनॉमी और नॉलेज से क्या संबंध है, और नॉलेज सोसाइटी और कंट्री की डेवलपमेंट यानी विकास का क्या संबंध है। ये बहुत सारे सवाल का जवाब हमें इस फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पर मिलता है, राइट। तो नॉलेज सोसाइटी की डेफिनेशन हमने यहाँ पर करने का प्रयास किया और फ्लो चार्ट के माध्यम से अधिक जानकारी यहाँ पर हमने प्राप्त करने की कोशिश की। सो इट इज़ अ सोसाइटी इन विच द जनरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉलेज प्ले अ मेजर रोल इन क्रिएशन ऑफ नेशन वेल्थ। तो ये ऐसी प्रकार की सोसाइटी है जहाँ पर नॉलेज का जनरेशन होता है, डिफ्यूजन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, और ये सभी जो क्रिया है नेशन की वेल्थ बनाने में हमें मदद करती है। जैसे कि वेल्थ यानी संपत्ति, जैसे ग्रॉस इनकम बोलते हैं हम, नेशंस वेल्थ यानी कि जीएनपी, ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि जो स्थावर मालमत्ता है, सभी प्रकार की मालमत्ता और उनका मूल्य, पैसों में उनका मूल्य, तो उसे जीएनपी बोला जाता है, ग्रॉस नेशनल इनकम। ओके, सो इट इज़ अ सोसाइटी दैट अनेबल पीपल टू डेवलप विदाउट लिमिट्स। तो इस प्रकार की सोसाइटी को किसी भी प्रकार का लिमिट नहीं हम कर सकते, अनलिमिटेड ये होता है। इट्स ओपन
opportunities for all kinds of knowledge to be mass produced and mass utilized throughout society as a whole. Okay. So it is a one of that creates and shares knowledge for the prosperity and well-being of nation in these societies. Inequality is defined in terms of exclusion from knowledge and omissions of knowledge. ओके इस तरह से अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है अलग अलग डेफिनेटर के द्वारा. So knowledge society promotes human rights and offer equal, inclusive and universal access to all knowledge creation. So when we acquire the knowledge, at that time we behave equally all the peoples. जब हमें नॉलेज प्राप्त होता है या नॉलेज हम एक्वायर करते हैं तो सभी लोगों को हम समान रूप से देखते हैं. समानता हमारी आंखों में आ जाती है, दृष्टि में आ जाती है, हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है नॉलेज प्राप्त होने के बाद. और जिसे नॉलेज नहीं है उसको सभी चीज़ों में भेद दिखाई देगा, तुलना भी करता रहेगा. ओके तो इस तरह से फिर हर एक चीज़ उसको असमान दिखती नज़र आएगी और फिर उसका सेटिस्फैक्शन इसमें कभी नहीं होता. लेकिन नॉलेज इज द सिंबल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके इक्वालिटी. ओके तो नॉलेज इक्वालिटी का प्रतीक होता है, नॉलेज सेटिस्फैक्शन का प्रतीक होता है, नॉलेज विजडम का प्रतीक होता है. जब नॉलेज व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति विजडम महसूस करता है, हैप्पीनेस महसूस करता है, सबको इक्वल नज़र से देखता है. ओके तो इतना नॉलेज का इम्पोर्टेंट होता है. तो नॉलेज सोसाइटी में और अननॉलेज सोसाइटी ऐसे दो भागों में हम विभाजन कर सकते हैं. तो नॉलेज सोसाइटी में अंडरस्टैंडिंग पावर लेवल ज़्यादा होगी, उसमें कम समस्या होगी. ओके सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी, एज ज़्यादा उसमें हमें दिखाई देगा, हाई प्रोफाइल लाइफ वे लोग जीते हैं. उसके विपरीत अननॉलेजेबल सोसाइटी जिसे बोलते हैं, अनस्किल्ड सोसाइटी हम बोल सकते हैं, और उसमें तो हम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखते हैं. वे लोग प्राइमरी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए झगड़ते रहते हैं. ओके सेकेंडरी लाइफ, सेकेंडरी जो नीड्स होती है वे उन्हें कभी नहीं मिलती, इसलिए उनका लाइफ जो होता है कंफर्टेबल नहीं होता है. वे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हर एक चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हमेशा स्ट्रगलिंग करते हैं, हमेशा दौड़ते रहते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर्स. तो उनको सेटिस्फैक्शन वहाँ पर नहीं मिलता है. The UNESCO World Report established 4 principles that are essential for development of equitable knowledge of society. So according to the World Report of UNESCO, 4 principles that given by development of knowledge society. तो यूनेस्को के माध्यम से थ्रू द यूनेस्को 4 principles are formulated to develop the knowledge society. Okay तो उसमें पॉइंट्स दिए हैं प्रिंसिपल. कल्चरल डाइवर्सिटी, जैसे कि हम अपना एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी है, हर एक राज्य की डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी अलग अलग हम देखते हैं. ओके उनके खान पान, रहन सहन अलग अलग एक दूसरे से होता है. इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, लेकिन सबको इक्वल एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार होता है और इसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं. यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, और सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन में एक्सेस कर सकते हैं. जैसे कि हमारे देश में भी एक फ्रीडम मूवमेंट चला गया इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन फ्रीडम जैसे बोलते हैं,
और अंबानी ग्रुप ने इसमें इन्वेस्टमेंट की और जियो के माध्यम से डेटा अधिक स्वस्थ करने का प्रयास किया गया। लेकिन इससे पहले हम देखते थे तो डेटा 1 GB डेटा 500 में आता था, 200 में आता था, लेकिन अब कई गुना डेटा जैसे कि 50 GB डेटा हम 200 में, 300 में, 500 में अभी परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग रूप से हम यहाँ पर बातें कर सकते हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं। 4 प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं ये हमने यहाँ पर देखा। और इसके बाद हम अब नॉलेज सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज सोसाइटी वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ओके, so following are the main characteristic of knowledge society. We are going to read one by one here. Members of knowledge society have attained higher average standard of education in comparison to the other societies and growing propagations of its labor forces are employing knowledge worker. Okay. तो मेंबर ऑफ नॉलेज सोसाइटी हाउ अटेन हायर एवरेज स्टैंडर्ड एजुकेशन। तो नॉलेज सोसाइटी में जो मेंबर होते हैं दे आर ट्राइंग टू एक्वायर द नॉलेज। सो नॉलेज ऐसी चीज़ है, एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हमें नॉलेज प्राप्त होता है। ओके, यदि पूरे देश को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो एजुकेशनल सोसाइटी एंड नॉन एजुकेशनल सोसाइटी, इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। और सोसाइटी में पीपल को अगर डिवाइड किया जाए तो एजुकेटेड पीपल, नॉन एजुकेटेड पीपल। तो आप दोनों में कंपैरिजन करते हो तो आपको एक बात दिखाई देती है कि जो एजुकेटेड पीपल होते हैं तो उनकी जो लेवल होती है हर एक प्रकार से, जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल, इंडिविजुअल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल्स, सभी स्तरों पर उनका विकास होता है, राइट। और एजुकेशन के बेस पर वो नॉलेज प्राप्त करते हैं और नॉलेज के बेस पर वे स्किल प्राप्त करते हैं और स्किल के बेस पर वो अपना व्यक्ति महत्व विकास करते हैं और उसके बेस पर अर्निंग करते हैं। तो इस तरह से सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक सभी प्रकार की प्रगति वे कर पाते हैं। ओके, एजुकेटेड। लेकिन जो नॉन एजुकेटेड पीपल होते हैं तो उन्हें नॉलेज नहीं होता और नॉलेज न होने के कारण वे स्किल एक्वायर नहीं कर पाते हैं और स्किल न होने की वजह से वे अच्छी खासी अर्निंग नहीं कर सकते। फिर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और फिर ब्रेड एंड बटर के लिए झगड़ते रहते हैं। उनकी प्राइमरी नीड्स भी अच्छी तरह से पूरी नहीं होती। फिर उनके बच्चों को अच्छा तरह का एजुकेशन और हेल्थ, आरोग्य नहीं मिलता है। तो इस तरह से वे प्रॉब्लम में होते हैं। तो दोनों में तुलनात्मक उदाहरण हम यहाँ पर दे सकते हैं कि किस वजह से एजुकेशन का इफेक्ट सोसाइटी पर होता है। ओके, तो एजुकेशन इट इज़ ए काइंड ऑफ गंगा through which we are getting the knowledge, right?
and after getting the knowledge we can satisfy, we can desire, we can fulfill our desire with the help of waters after drinking it. जैसे पानी पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं उस तरह से एजुकेशन एक गंगा है और उसमें नॉलेज बहता है, और नॉलेज का पानी पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार की जो नीड्स हमारी होती है, फिर वो प्राइमरी नीड्स हो या सेकेंडरी नीड्स हो, वह हम नॉलेज के माध्यम से पूरी करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इस तरह से एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया है। जिस देश का एजुकेशन स्ट्रांग होता है उस देश की नॉलेज सोसाइटी स्ट्रांग होती है। जिस देश की नॉलेज सोसाइटी स्ट्रांग होती है उस देश की इकोनॉमी सिस्टम स्ट्रांग होती है। ओके, तो इस तरह का ये रिलेशन है, इस तरह का ये चक्र है, ये चक्र हमें समझ में आना चाहिए। और जिस देश में एजुकेशन को लो इम्पोर्टेंस दिया जाता है, कम महत्व दिया जाता है, उस देश का नाश निश्चित है। ओके, यानी कि वो देश खाई में गिर जाता है, फिर कभी उभर कर ऊपर नहीं आता है। तो हर एक देश को अपनी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और वहाँ के जो पॉलिटिशियन है, वहाँ की जो पार्टियाज हैं, पॉलिटिकल पार्टियाज, उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि हमारे देश का यदि विकास करना है तो हमें हमारा इकोनॉमी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और इसके बाद हमारा इकोनॉमी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल धूर्त होते हैं, वे अपना ही विकास करना चाहते हैं और उनकी जो जनता होती है उनका विकास नहीं करना चाहते। यदि उनका भी विकास हो गया तो वे भी पॉलिटिशियन बनना चाहेंगे, वे भी सत्ता को काबिज करने का प्रयास करेंगे। तो फिर इनका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है, पॉलिटिशियन का जो प्रेजेंट में होते हैं। फिर ये लोग ऐसा नहीं करना चाहते, ये पर्पसफुली एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करने के बजाय ये वीक करना चाहते हैं, ताकि लोगों को शिक्षा न मिले, वे पढ़ लिख कर होशियार न हो, और उनकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति में सुधार नहीं होना चाहिए। इस तरह की मानसिकता ये पॉलिटिशियन रखते हैं। तो देश की प्रगति करना है या देश की अधोगति करना है, यह उस देश में पॉलिटिकल लीडर पर डिपेंड होता है, पॉलिटिकल पार्टियाज होती है, लीडर्स होते हैं, उस पर डिपेंड होता है। यदि उनकी मानसिकता स्वार्थी है तो उस देश की अधोगति निश्चित है, और यदि उन लोगों की मानसिकता अच्छी है, लोक कल्याण की है, स्वार्थी नहीं है, तो उस देश की प्रगति होती है। तो यहाँ पर एक वर्ड को हमने इम्पोर्टेंस दिया, इस पर बहुत सारी चर्चा हमने यहाँ पर की। तो वर्ड्स कौन सा है? एजुकेशन। ओके, तो एजुकेशन की वजह से क्या होता है? नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज की वजह से स्किल बढ़ता है, स्किल की वजह से हम अर्निंग करते हैं, फिर अर्निंग होने से आई इनकम बढ़ता है, आई इनकम से जीएनपी बढ़ता है। तो किस तरह का ये रिलेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं? आई विल रब दिस। रिलेशन किस तरह का है? एजुकेशन सिस्टम जिस देश की स्ट्रांग होती है उस देश का नॉलेज सिस्टम स्ट्रांग होती है। ओके, जिस देश की नॉलेज सिस्टम स्ट्रांग होती है वे देश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल पर्सन स्ट्रांग होते हैं, इंस्टीट्यूट का विकास होता है। ओके, और इसी स्किल के विकास होने के बाद अर्निंग वे अच्छी तरह से करते हैं। अच्छी तरह से जॉब भी एक्वायर करते हैं,
और अच्छी तरह से जॉब एक्वायर करने के बाद उनका इंडिविजुअल इनकम बढ़ता है। इनकम बढ़ता है, इंडिविजुअल इनकम बढ़ने से ग्रॉस नेशनल इनकम बढ़ता है, प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं ये बढ़ता है, और जिसकी जीएनपी बढ़ती है उस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। ओके, तो इस तरह से ये हायरार्की है। तो ये सभी जो हायरार्की आगे की जो चीज़ें हैं सभी एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड होती है। तो इसमें दो प्रकार की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। जिस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग लेवल की होती है और जिस देश की एजुकेशन सिस्टम वीक लेवल की होती है। तो जैसी एजुकेशन सिस्टम वैसी आगे की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यदि एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है तो आगे की सभी चीज़ें स्ट्रांग हो सकती है और अंत में इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। ओके, और जिस देश की एजुकेशन सिस्टम वीक होती है तो फिर नॉलेज सिस्टम वीक होती है, स्किल वीक होते हैं, अर्निंग वीक होती है, इंडिविजुअल इनकम वीक होता है, नेशनल जीएनपी जिसे बोलते हैं वीक होता है, और इकोनॉमी भी फिर उनकी वीक होती है। फिर वह देश अनडेवलप कंट्री में कैटेगराइज होता है। तो हमारा देश डेवलप है, डेवलपिंग है या अनडेवलप है, इसको हमारी एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत सारे कम लोगों को पता है कि ये कैसे सीधा रिलेशन एजुकेशन सिस्टम का रिलेशन हमारे इकोनॉमी से होता है। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम यहाँ पर देख सकते हैं। वाइल वी आर स्टडिंग द नॉलेज सिस्टम, knowledge society, at that time education system is most important there, because through the education system we can acquire the knowledge, and through the knowledge we can acquire the different types of skill, and through the skill we can acquire the job, good earning, and through the good job, through the good earning we can increase our individual income, and through the individual income we can fulfill our primary needs as well as secondary needs, and our life become the comfortable. And when each and every person, those who are living in the country, when their high income will be increased there, automatically gross national income products will be increased there. And when the GNP means gross national product means income will be increased there, then the economy of country become the strong there. And when the economy of any nation become the strong, the nation or the country categorized as a developed country, right? तो हमारे देश का विकास और विकसित राष्ट्र होना ये एजुकेशन सिस्टम पर निर्भर होता है। इस उदाहरण के माध्यम से, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से यह हम यहाँ पर समझ सकते हैं, राइट? तो यू कैन नोट डाउन दिस, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नॉलेज सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी, और इंफॉर्मेशन सोसाइटी पर बात करने के बाद अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द नॉलेज सोसाइटी, राइट? एंड इन विच वी आर वाचिंग दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
सोसाइटी, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक पर हमने यहाँ पर चर्चा की, उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, कीवर्ड है एजुकेशन। तो एजुकेशन के माध्यम से हम किस तरह से अपना देश का विकास कर सकते हैं, राइट। सेकंड वन, इट्स इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस product with the integrated artificial intelligence such as the voice recognition software technology which is used increasingly in smart cars. Okay, so when we are talking about the education system, right, when we make the strong education system, then we can get the knowledge, and through the knowledge system we can acquire the different types of skill, and when the different types of skill are developed, each and every person at that time we can create the industry. Many products we are produced in our country, we do not depend on the other country for the productions, right. तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एजुकेशन के बाद प्रोडक्शन और इंडस्ट्री का महत्व क्या होता है, और ये भी पूरा एजुकेशन सिस्टम, नॉलेज सिस्टम और स्किल सिस्टम पर डिपेंड होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, नॉलेज सिस्टम स्ट्रांग होने के बाद, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होने के बाद नॉलेज सिस्टम स्ट्रांग होती है, नॉलेज सिस्टम स्ट्रांग होने के बाद स्किल सिस्टम स्ट्रांग होती है, और जहाँ पर हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के स्किल होते हैं, तो अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस होती है, अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और फिर उसमें से हर एक प्रोडक्ट की इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है, कंपनी इस्टेब्लिश होती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हम बोलते हैं वो एजुकेशन के माध्यम से ही होता है। जैसे कि पहली जो औद्योगिक क्रांति थी इंग्लैंड में हुई थी, तो उसका क्या कारण था, उसके पीछे क्या रीज़न था, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, व्हाई द इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज बिकेम इन फर्स्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्यों हुई, क्योंकि वे उस समय 100 साल पहले वे एजुकेटेड थे, और उस समय जब हमारी तुलना यदि हम इंग्लैंड से करते हैं तो हम अनएजुकेटेड थे। ओके, तो उस समय की सिचुएशन इंग्लैंड की ऐसी थी कि वहाँ के 90% लोग एजुकेटेड थे इंग्लैंड में, राइट। सो 90% पीपल दोज हु आर लिविंग इन द इंग्लैंड, they are well educated before the 100 years, but if we are compare our country's situation with England, ये पूरा उल्टा था। कैसे? 90% people are uneducated from our India and 10% were educated, okay। तो 90% लोग हमारे देश में अनएजुकेटेड थे और 10% एजुकेटेड थे। तो इंग्लैंड की और इंडिया की 100 साल पहले जब हम तुलना करते हैं तो उनकी एजुकेशन सिस्टम में कितना फ़र्क था, ये दो उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर देख सकते हैं, और परसेंटेज के माध्यम से भी हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया। तो एजुकेशन के माध्यम से इंग्लैंड में फर्स्ट औद्योगिक क्रांति हुई, उसका ये रीज़न है क्योंकि उनकी एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग थी, और दुनिया में किसी भी देश की पास इतनी एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं थी। इसकी वजह से वे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं कर पाए। एक में ऐसा देश था इंग्लैंड जिसमें एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग थी। तो इस तरह से हम अलग अलग उदाहरण के माध्यम से एजुकेशन का इम्पोर्टेंस यहाँ पर दे सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होती है, फिर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होने के बाद कौन सी सिस्टम स्ट्रांग होने लगती है, और फिर इंडस्ट्री सिस्टम भी स्ट्रांग होती है। थर्ड, द प्राइस ऑफ मोस्ट प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द नॉलेज needed for their development and sale rather than
by the raw material and physical labor that is needed to produce them. तो इस तरह से इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनका नॉलेज किस प्रकार का है, उनके स्किल किस प्रकार के हैं, तो उनके नॉलेज और स्किल के बेस पे विच काइंड ऑफ द प्रोडक्ट दे विल प्रिपेयर, द प्राइस इज डिपेंड ऑन देयर स्किल एज वेल एज नॉलेज. तो प्रोडक्ट की प्राइस उस पर्सन के नॉलेज और स्किल पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है. जैसे कि जो हैंडमेड इंडस्ट्रीज होती है क्लॉथ की, तो उसमें सिंपल जो क्लॉथ होता है, सिंपल जो साड़ी होती है, उसकी प्राइस अलग होती है, कम होती है, क्योंकि वो सीधी साधारण स्किल से बनाई होती है. लेकिन जिसके पास भरपूर स्किल है डिज़ाइन का, और वे एम्ब्रॉयडरी करके कई प्रकार की वो साड़ी डिज़ाइन करते हैं, साड़ी बनाते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं, तो उसकी प्राइस बहुत हाई होती है. ओके, तो नॉलेज के बेस पर, स्किल के बेस पर दोनों प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग हमें यहाँ पर दिखाई देती है. जैसे कि हम एक ही प्रोडक्ट लेकिन अलग अलग कंपनी के होते हैं, लेकिन उसकी प्राइस अलग अलग होती है. इसके पीछे कारण क्या होता है? देयर स्किल, देयर नॉलेज सिस्टम ऑफ वर्किंग, ओके, देयर क्वालिटी, राइट. सो ऑल दिस थिंग्स आर बिहाइंड द प्रोडक्ट. जैसे कि सब अलग अलग कंपनी के होते, सब एक ही है लेकिन अलग अलग कंपनी के होते हैं और उनकी प्राइस भी अलग अलग हमें दिखाई देती है. तो ये किस पर निर्भर करता है? उसमें किस प्रकार का स्किल यूज किया गया है, उसमें किस प्रकार की क्वालिटीज़ प्रोवाइड की गई है, इस पर ये डिपेंड करता है. तो भले ही प्रोडक्ट एक हो, एक पदार्थ बनाया हो, एक प्रोडक्ट बनाया हो, लेकिन डिफरेंट स्किल और नॉलेज के हिसाब से उस प्रोडक्ट की प्राइस निर्भर की जाती है, डिसाइड की जाती है. तो नॉलेज और स्किल का कितना इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस भी ये नॉलेज और स्किल पर ही डिपेंड करता है. ओके, जैसे कि आपको ड्रेस सिलवाने हैं, 2 ड्रेस सिलवाने हैं, तो एक ड्रेस को आपने एक टेलर के पास डाला और दूसरा ड्रेस को दूसरे टेलर के पास डाला, लेकिन दोनों की प्राइस अलग अलग है. एक आपसे 5,000 रुपये फीस लेता है और एक 2,000 रुपये फीस लेता है. तो उनकी जो फीस होती है उसमें डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हर दोनों का नॉलेज एक दूसरे से अलग है, स्किल अलग है. जो 5,000 आपसे लेता है फीस आपका ड्रेस सिलवाने के लिए, तो उसका स्किल, उसका नॉलेज दूसरे ट्रेलर से डिफरेंट होगा, अलग होगा, ज़्यादा होगा. ओके, इसलिए वो ज़्यादा पैसे लेता है. ओके, और जब हम हमेशा इंडस्ट्री में और कॉमर्स में हम हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, स्किल और नॉलेज के बेस पे हमेशा अच्छी देने का प्रयास करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर ब्रांड बनता है. क्या बनता है? ब्रांड. ब्रांड यानी कि क्या? एक बार लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आया तो बहुत सारे कस्टमर वह हमारा प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो फिर कंपनी को उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती. वो अपने आप भी बिकता है, अपने नाम से ही बिकता है, अपने स्किल के बेस पे बिकता है, अपने नॉलेज के बेस पे बिकता है, अपने क्वालिटी के बेस पर बिकता है. ओके, तो इस तरह से हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ के पीछे आपको नॉलेज दिखाई देगा. नॉलेज सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं. ओके, so we don't avoid the knowledge, we don't ignore on the knowledge. So that's why those countries given a lot of importance to their society as a knowledge society, then they become rich country, they become the developed country. जो देश अपने नॉलेज सोसाइटी को इम्पोर्टेंट देते हैं, इंफॉर्मेशन सोसाइटी को इम्पोर्टेंट देते हैं,
और एजुकेशन के द्वारा देश में नॉलेज सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं, उस देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, उस देश का आय इनकम, इंडिविजुअल लोगों का इनकम जिसे हम इंडिविजुअल इनकम बोलते हैं वो स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर आय इनकम स्ट्रॉन्ग होने के कारण देश का जो इनकम होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी जिसे बोलते हैं, ओके, तो वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। और दोनों जीएनपी और इंडिविजुअल इनकम स्ट्रॉन्ग होने के कारण देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने के कारण वह देश विकसित राष्ट्र बनकर ऊपर आता है, विकसित राष्ट्र उभर कर ऊपर आता है। ओके, तो इस तरह से ये कनेक्शन होता है, ये सभी एजुकेशन पर डिपेंड होता है। विदाउट एजुकेशन हम कुछ नहीं कर सकते। तो हर एक देश को और उस देश के पॉलिटिशियन को, गवर्नमेंट को अपने एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी नॉलेज सिस्टम स्ट्रांग हो सके, हमारी स्किल सिस्टम स्ट्रांग हो सके, और फिर हमारी देश की इकोनॉमी सिस्टम स्ट्रांग हो सके। तो ये सभी सिस्टम हमारे देश को विकसित करने में मदद करती है। सो टुडे we have been discussed on the what is meaning by the knowledge society, what is the definition of knowledge society, what are the characteristic of knowledge society, what is the function of knowledge society, what is the relation of knowledge and economy, what is the education system is most important in our country. We have been discussed all kinds of the points. So today we will stop here, remaining part we will take tomorrow. Thank you.